Hello students, I am Chakshu Gupta from Department of Management, Vishweshwara Group of Institutions. Today we are going to start the subject Human Resource Management. So before starting the subject, we must know that why this Human Resource Management subject is introduced. Why is it so important to study about this subject? As we all know that any organization, any business setup has always a goal or objective in their mind, right? So any business, any goal, any organizational setup uses various resources in the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन जब डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करती है तभी वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाती है. फॉर एग्जाम्पल, if I say for starting your business, the organization need money, that is capital, they need land, they need labor, they need infrastructure, stock, everything. So there are various resources what an organization requires to achieve the business objective, right? So same way, this subject keeps a focus that human as a resource is very important part of any organization. They are actually not just the resource, they are an asset for the organization because they are the driving force which leading the business to another level. So that is why it is very important to study this subject. Now, this subject comprises of three words: human, resource and management. So let us discuss one by one. So the first word is human. Human, we all know, human are people. They are the part of the organization. They are the driving force. They are the people who are getting the work done for the organization. And these people comes from different background, different cultures, different beliefs, different psychology. So it is not at all easy to deal with human, right? Because they have we face diversity in the people. So dealing human is not as easy task as if we keep an example of machinery, because if we'll put a program in the machinery, they will take a command and they will pursue the task. But human are not like that. They always have emotions, they always have different behavior, they have psychology. So same way, dealing with human is quite a complex task. So human as a resource, what is the meaning of resource? Resources are various type of stock, supply, like the supply of money we talk about, the supply of material, the inventory which an organization keep in warehouses, the staff, the people, that is also a resource. They all are drawn together by a person or an organization in order to function effectively. So we need various resources. Now what is the meaning of management? Management is defined as all the activities and tasks undertaken for achieving goals of the organization by continuous activities. That continuous dynamic activities are planning, organizing, staffing, directing, leading and controlling. So these all activities of the organization ultimately creates the management in the organization, which is very important. Managing the task of the organization is very important. And if we talk about human resource management, we are talking about human as a resource, how they are human as a resource, how they are contributing in management. So human resource management is management of the human resource. So if in simple words, if we talk about, it says that HRM is an abbreviation of human resource management. It is the process of making the efficient and effective use of human resources so that the set of goals are achieved. इट मीन्स आपके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एसेट्स, पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, हम उनका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल के सेट ऑफ गोल्स को अचीव करें. दैट इज द concept of human resource management, which is depicted through this slide. Okay, now moving further, if I talk about the definition from National Institute of Personnel Management,
this research institute says that I will be just reading the definition, but I would like to give you a brief about it. It says that, as in the previous slide, we talk about that we have to use the effective and efficient utilization of human resource. बस दिस डेफिनेशन फोकस है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे साथ काम कर रहा है, हम ना कि सिर्फ उनका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करें, उसके साथ साथ हमारे साथ जो भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, हम उन्हें डेवलप करें, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें. वी शुड थिंक अबाउट देम एज वेल, क्योंकि दैट इज़ बीन प्रूव्ड बाय द वेरियस रिसर्च. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेटेड रखेंगे, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो डेफिनेटली दे विल बी पेइंग यू बैक. वो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन होने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके, एंगेज हो करके, इन्वॉल्व हो करके ज़्यादा अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म करेगा. Right? So coming back to the definition given by NIPM, which is National Institute of Personnel Management, it says that that part of management which is concerned with the people at work and with their relationship in an enterprise. It aims to bring together and develop. I repeat, it aims to bring together and develop into an effective organization of men and women who make up an enterprise, and having regard for the well-being of individuals and working groups to enable them to make their best contribution to its success. So ये डेफिनेशन किस चीज़ पर फोकस कर रही है? इट इज़ फोकसिंग दैट आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए कंसर्न्ड फील करें, हम उनका रिलेशनशिप एंटरप्राइज के लिए के साथ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका रिलेशनशिप अच्छा बनाया जाए. सभी लोगों को, सभी वर्कफोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ लेकर के आया जाए, उन्हें इस तरह से डेवलप किया जाए, इस तरह का एक कल्चर डेवलप किया जाए, अ काइंड ऑफ अ हार्मनी स्टेज वेर इन ऑल द इंडिविजुअल, all the groups feel connected with the organization and they must contribute towards the success of the organization. I hope this definition is clear to you. Now I'm moving to the next slide. So this slide has the definition of human resource management. It is being given by Edwin B. Flipper. This definition says human resource management is the planning, organizing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टूड दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जैसे बाकी सब फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, मतलब डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स भी काम करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पर. ऑफ व्हाट? ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस and separation of human resources. One by one we'll be discussing all the words. Number one, it says procurement. What is the meaning of procurement? In general language, हम organization में जब भी procurement की बात करते हैं, we talk about the purchase of the products. भाई अगर इफ़ यू वांट टू परचेज सम रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, तो जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, दे गेट डिफरेंट टेंडर्स, दे गेट डिफरेंट कोटेशंस फ्रॉम वेरियस वेंडर्स. जो भी बेस्ट कोटेशन होता है, भाई किसने हमें अच्छे रेट्स दिए, किसने हमें अच्छा क्रेडिट दिया, किसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उन सभी पैरामीटर्स पर हम अपने वेंडर्स मैनेज कर लेते हैं. प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो परचेज देख रहा होता है, वो अपने वेंडर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में मैनेज कर देता है, कैटेगरी ए, बी, सी, समथिंग लाइक दैट. तो उस केस में हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट को. लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स में प्रोक्योरमेंट वर्ड को क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हियर वी आर हायरिंग द पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हायर करना एम्प्लॉयज़ को डिनोट करा जा रहा है प्रोक्योरमेंट से. इसका मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्स आप ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं एज एन HR मैनेजर, वो ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गिवन टास्क को सही तरीके से फुलफिल कर पाए. सही स्किल, गेटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एट द राइट
cost for the organization is very very important. So procuring the people for the organization is very important task of human resource management, right? Then it says development. डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उस ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग डेवलप कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर ट्रेनिंग देम, हाउ वी आर मोटिवेटिंग देम. ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के आने के बाद हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट देमसेल्व्स, राइट? तो क्या उनका करियर डेवलपमेंट हमारे साथ हो रहा है, क्या उनके स्किल्स में अपग्रेडेशन हमारे साथ हो रहा है, दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द पीपल विल बी द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट? देन इट सेज कंपनसेशन. कंपनसेशन का मतलब है सैलरी बनाना एम्प्लॉयज़ की, उनकी इंसेंटिव स्कीम प्लान करना, हम उन्हें किस तरीके से रिवॉर्ड्स, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स जो हैं आगे उनके लिए प्लान करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों की क्राइटेरिया तैयार करना, दैट विल बी द पार्ट ऑफ कंपनसेशन. इंटीग्रेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वेदर दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन और मार्केटिंग और सेल्स और लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस, एनी डिपार्टमेंट, उन सभी को एक साथ इंटीग्रेटेड रखना, दैट विल बी the part of human resource management only. Then maintenance of the people means जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सही स्किल सेट, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब हम सही स्किल सेट को अपने साथ ले, सही स्किल सेट से मतलब है स्किल सेट ऑफ एन एम्प्लॉय, उसको हमारे साथ हम रखना चाहते हैं. तो अच्छी कॉम्पिटेंसी के लोगों को अपने साथ मेंटेन करना, रिटेंशन जिसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स वर्ल्ड के अंदर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. रिटेन करना अच्छे एम्प्लॉय को अपने साथ, दैट इज़ अनदर बिग चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और वो तभी होगा जब हम सभी एरियाज पे ह्यूमन रिसोर्स के फोकस करेंगे. मेंटेनिंग द राइट पीपल, रिटेनिंग द राइट पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का बेटा मतलब होता है कि जब भी कोई ह्यूमन रिसोर्स या कोई एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, छोड़ करके जा रहा है, दैट कैन बी वेरियस रीजंस. शायद वो अपने डेवलपमेंट के लिए जा रहा हो, आगे अपने ग्रोथ के, कोई भी रीज़न हो सकता है. तो उस सेपरेशन को अप्रोप्रिएटली हैंडल करना. फॉर एग्जाम्पल, जब भी एम्प्लॉय जाएगा वो टाइम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की इंफॉर्मेशन देगा, दैट मीन्स टाइमली रेजिग्नेशन देगा. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को अपना नोटिस पीरियड सर्व करेगा. नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद they will be moving, then they will be separating from the organization, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसको सही टाइम पे अपना रिलीविंग व एक्सपीरियंस लेटर जो है दे सके, राइट? सो सेपरेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स हैज़ टू बी हैंडल्ड वेरी sincerely by the human resource department, right? So separation of human resource to the end. I am coming back to the definition. Separation of human resource to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. इसका मतलब क्या है कि कभी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात नहीं करता. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर कैन बी अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी विजिबिलिटी मार्केट में बढ़ाना कैन बी एन ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स ये कहता है कि कभी भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम नहीं करता. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे साथ जुड़ा है उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना. उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि टाइम टू टाइम उसे ट्रेनिंग मिलती रहे, टाइम टू टाइम उसका डेवलपमेंट होता रहे, उसका करियर ग्रोथ होता रहे. these individual objective has to be also taken care under human resource management. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, और ऐसा इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क. आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के
एफर्ट्स को प्रॉपरली टाइम टू टाइम उन एफर्ट्स को अगर आप समझ रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उन्हें प्रमोशन दे सकते हैं, क्यों नहीं हम उनके सैलरी पैकेजेस में अपग्रेडेशन ला सकते हैं. दीज लिटिल थिंग्स कैन upgrade the motivation of the employees, and they can work for better areas, they can work for with a better essence in the organization, right?